Good morning students. Today I am going to discuss with you exercise 3.1 question number 2. So how many diagonals does each of the following have? In this question 3 points are given to you. You have to calculate diagonals. की convex quadrilateral है उसमें कितने diagonals होते हैं, regular hexagon है उसमें कितने diagonals होते हैं. So quadrilateral means 4 sides, right? So इसमें कितने diagonals होंगे? We will match them 1 and this one 2. Means a convex quadrilateral has 2 diagonals. Next, a regular hexagon. Hexagon means 6 sides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये हमारा regular hexagon बन गया. So we have to calculate कि how many diagonals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? 8 and this one 9. So there are 9 diagonals, right? If we talk about triangle, कि how many sides, कि कितने diagonals है? Triangle means 3 sides. But a triangle have no diagonal. You have to know about कि triangle का कोई भी diagonal नहीं होता. I think student this one is clear to you. Now your next question is question number 3. In this question he has asked about like that कि how many कि angle sum property. You know about angle sum property? एंगल सम प्रॉपर्टी ये आपको पहले भी बताई थी. इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपको साइड्स गिवन होती हैं तो आपने क्या निकालने होते हैं कि हाउ मेनी एंगल्स. इफ इन दिस क्वेश्चन एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी है? ये ऑफ पॉलीगॉन. सो इन दिस n-2 into 180 degree. n means sides. So in your first question, this one is your 5th question. A आपको given है 7 sides, means 7 sides is given to you. So n-2 into 180 degree. If 7 sides are given to you, तो उसका sum कितना होगा? ठीक है. So n7 minus 2 into 180 degree. 7 minus 2 5 into 180 means 5 into 180 आपके पास आ गया 900. One more question I am going to do for you. Next question B, in which n is given to you 5 sides. ठीक है स्टूडेंट, सॉरी 8 sides is given to you. 8 sides. So for your 8 sides n minus 2 into 180. Same thing. How many sides are given to you? You have to calculate. n means आपकी 8 हो गया. 8 minus 2 into 180 degree. 8 minus 2 6. 6 into 180 degree. 8 6 to 48. You got 1080 degree. So students, you have to put in mind angle sum property of polygon. फॉर्मूला इज एन. जितनी आपको साइड्स के बने आपको सम पता लग जाएगा कि इसका इंटीरियर एक्सटीरियर का क्या प्रॉपर्टी है. ओके स्टूडेंट्स, सो योर 5th क्वेश्चन इज इन विच सॉरी आई एम गोइंग टू डू फॉर योर 6th क्वेश्चन. you have to measure the different angles, interior angles. You have to calculate in this interior angles, right? So your first question in this given to you like that. This one is your 6th question. Find the angles. He said find the angle in which x की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है. सम इज गिवन टू यू like in this way. Sum is given to you. In this first degree is 50 degree and this one is 130 degree and next x is equal to
120 degree. So students, this one is your quadrilateral. Quadrilateral आपको पता लग गया. How many sides are given? 4 sides given. That means ये आपका क्या हो गया? Quadrilateral. ठीक है. So how do you calculate? So आपकी angle sum property क्या होगी? 360 degree. So we will take 50 degree plus x plus 130 degree plus 120 degree is equal to 360 degree. 50, 130 plus 120, 250, 250 plus 50, 300. 300 degree plus x is equal to 360 degree. x आपके पास आ गया 360 degree minus 300 means 60 degree is your answer. Right students? So how to will calculate? अगर आपको one side missing है then there are 4 sides. It means it's quadrilateral. और आपका angle sum तो आपको पता लग जाएगा कि this one angle sum is 360 degree. So your next question 6 का second part है. In this question this type of diagram is given to you. In this question you have to calculate the value of 70 degree is equal to 60 degree and this one your exterior angle is given to you. So students 4 sides same angle sum आपको 360 लगेगा means 4 sides हैं. That means it is also quadrilateral, right? And you have to know if this one is 90 degree means 180 degree. This one is linear pair बन जाएगा 180 minus 90 is also 90 degree. Okay, so we will calculate x plus 70 degree plus 90 degree plus 60 degree is equal to 360 degree. Now we will add it 70 plus 90 160 160 plus 60 आपके पास क्या हो गई 220 degree is equal to 360 degree. X is equal to 360 degree minus 220 degree आपके पास क्या आ गया 140 degree. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो गया आंसर x इज इक्वल टू 140 डिग्री. आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर. आपने सबसे पहले देखना है कि हाउ मेनी साइड्स 1 2 3 4 साइड मीन्स 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है इज इक्वल टू 360. वो तो आपको मैंने बताया कि हाउ वील कैलकुलेट. फिर उसके बाद x प्लस 70 जो आपको वैल्यूज गिवन होंगी आपने उस वे से कैलकुलेट कर देना है. नाउ 6 क्वेश्चन के remaining part I'm going to do for you, right, like that. In this question your 6th question 6C part in this way. Diagram is this one. x आपको कैलकुलेट करनी है दोनों. 30 डिग्री इज गिवन टू यू एंड दिस वन विल नॉट नहीं पता हमें. दिस वन 70 डिग्री एंड दिस वन 60 डिग्री. सो स्टूडेंट्स फर्स्टली यू हैव टू नो अबाउट हाउ मेनी साइड्स 1 2 3 4 5 साइड्स मीन्स पेंटागन, राइट. सो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है आपकी n-2 इंटू 180 डिग्री. n आपकी 5-2 इंटू 180 डिग्री. 3 इंटू 180 मीन्स किसके इक्वल आ गया आपका एंगल सम 540. यू कैन राइट इट लाइक डायरेक्ट भी लिख सकते हो. एंगल सम आप हमारे पास आ गया 540 डिग्री. सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इसे 1 मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे 2. ये आपके क्या हो गए लीनियर पेयर, ठीक है. सो हाउ वी विल कैलकुलेट 1 प्लस
70 डिग्री इज इक्वल टू 180. ये आपके क्या हो गए, लीनियर पेयर, राइट. 180 माइनस 70 डिग्री आपके पास क्या आ गया, 110 डिग्री. सेकेंड भी ऐसे ही निकालेंगे. दिस वन इज ऑल्सो लीनियर पेयर. 2 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री. अब हमें सारे एंगल्स पता लग गए, 1 भी पता लग गया. दिस वन इज ऑल्सो 110 और ये आपका क्या आ गया, सेकेंड एंगल 120 डिग्री. नाउ वी कैन ऐड देम, राइट. 30 डिग्री वही एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 120. अब किसके इक्वल रखोगे आप, 540 डिग्री. 540 डिग्री 30 डिग्री प्लस 2x प्लस ऐड करके आपके पास क्या आ गया, 2. आपके पास ऐड करके आ गया 2x प्लस 110 प्लस 120 प्लस 30 260 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री. 2x 540 माइनस 260, तो आपके पास यू गॉट 280. ठीक है, 2x इज हेयर x. 280 डिवाइड बाई 2 आपके पास क्या आ गया, 140 डिग्री इज योर आंसर. I think student it should be clear to you how you have to do remaining sum. You have to do same sum है इसके साथ वाला ही. Here no sides is given to you. You have to do as this way. One more question, 7th question I'm going to do for you. 7th question, how you have to do it. So 7th question में आपको क्या कहा गया है, in your 7th question x plus y प्लस जेड आपको गिवन है कि आपको इसकी वैल्यू इक्वल रखनी है. सो हाउ यू कैन डू इट. फर्स्टली डायग्राम आपको गिवन है इन दिस वे. डायग्राम इज लाइक दैट, दिस वन, और ये आपको इस वे में डायग्राम गिवन है और उसमें आपकी वाई. नेक्स्ट ये हमने वैल्यूज निकालनी है. दिस वन इज 30 डिग्री एंड दिस वन इज 90 डिग्री और ये आपका क्या है, x की वन है. एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z. मतलब अपने x, y और z की वैल्यू निकालनी है. तब कैसे निकालोगे. सो फर्स्टली आपको पता है ये हम कैसे निकाल लेंगे, लीनियर पेयर. x प्लस 90 इज इक्वल टू 80. ये भी आपका z कैसे आ जाएगा, लीनियर पेयर के थ्रू. ठीक है, उसके बाद इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आप इसके इक्वल क्या आ जाएगा, y आ जाएगा. सो लेट्स डू स्टूडेंट्स, पहले 90 डिग्री प्लस x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180. ये आपका क्या हो गया, लीनियर पेयर. x 180 माइनस 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री. x की वैल्यू आ गई, गॉट द वैल्यू ऑफ x. सेकेंड हम क्या ले लेंगे, इसे ले लेंगे, z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180. ये भी आपका क्या हो गया, लीनियर पेयर. z की वैल्यू क्या आती है, 180 माइनस 30 मीन्स z इज इक्वल टू 150. स्टूडेंट्स x भी पता लग गया, z भी पता लग गया. अब हमें y, इन दोनों को प्लस कर दोगे ना इंटीरियर एंगल, तो सम इज इक्वल टू y. y इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 30 मीन्स 120. आपका क्या हो गया, सम ऑफ एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स, राइट. इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, अब आपको x, y प्लस z इसमें वैल्यू फिल करके दिखानी है कि इज इट इक्वल टू 360 और नॉट. सो x इज 90 प्लस 150 प्लस 120. So it would be equal to the 360. That means our angles are right. So students, from 7th question आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट
वो मैंने नोट्स में कर दिया है, एज के ऐसे ही आपने वैसे ही करना है. इज देयर एनी डाउट देन यू कैन आस्क टू मी, अदरवाइज योर 3.1 exercise is complete. In our next video we'll do 3.2 exercise. Okay, thank you.